So thanks NHI Chairman sir for inviting me here to share my experience. So I am working since 1974 in this department, civil engineering and roads and bridges building also. So regarding quality control of bridges, so first few minutes I will take what are the types of bridges, what we do, how we do quality control, what is the need for that. That is also the most important parameter is only subsurface and subsurface. Subsurface is below subgrade. For soil work, for road work, surface, geotechnical investigation. And the most important part for that is only the borehole test. Borehole location, whether it is a road or a bridge, every 1 kilometer roughly per road, we go for a bore investigation, we cut a bore. And for bridges at the bottom of the pier, at every pier we can have, if the span is less than 60 meter, we can take one. If span is more than 60 meter, we can have two at every pier. So this is the basic, the detail I will cover mostly all the presentation from where I have taken. On the top, you will find the reference number of the mode specification, large number, page number. This I have tried my best. Basically, the latest code I was also trying to cover also. So mainly there are two code, IRCSP 19 for road investigation and IRCSP 54 for bridge investigation. So today we will cover the bridge investigation, geotechnical subsurface investigation as per MORTH class 2400. Surface subsurface investigation. There is a latest IS code also, because this code also mentioned regarding testing. Normally we follow IS code. Regarding execution, normally we follow IRC code. And so regarding testing, IS 1892 2021. Subsurface, this is all for roads and building both and bridges also. This is the common code, IS code. Most of the tests, they are almost same, sir. First, regarding which type of bridge, you all might have seen no living bridge. So today I am going to show you the living bridge. What is living bridge? In first bridge was Cherapunji. There is a root bridge. Early beginning, we started, just 1 minute. So earlier we were having a root bridge. After that we shifted to jute bridge. Lakshman Jula was a jute bridge. Pannalur, Kerala also, it was a jute bridge. Because the wild animals should not cross towards the habitation. And cable stay bridge started from, you can say, Shravan Kumar. Shravan Kumar was carrying his mother and father. Same principle we have used in cable stay bridge. Seeing the condition and time, you can see here, this is the structure of a structure, ROB in Punjabi Bagh. Means everybody is busy in making road, everybody is moving also, and everybody is making metro also. So this is the time constraint I am going to show you. Diaphragm work is going on, stitch segment work is going on, road work is going on. This is a push segment construction. Mostly all the railway bridges, we take precast box, put it on the soil, and take out the soil, and we push inside, the traffic is moving. Below, it is a Lakshman Jula. It was constructed in 1924. Damage after 100 years. Now again, this was a 2.5 meter span. Now there is a, I think Uttarakhand people, they may be knowing how bridge is constructed. Then we will come to that. So first we have a pier or a shallow foundation. Over pier, first we have a pile. Then we have a pile cap. Then over the pile cap thickness shall be 1.5 times the diameter of the pile. After constructing pier, in the case of building, we call it column. In the case of bridges, we call it pier. In the case of cable stay bridge, we call it pylon. Almost same are the vertical component. Over the pier, we are having a pier head. The last pier or the last wall is called abutment wall or a abutment pier. Last boss, when bridge start and bridge end near the approaches. After having the pier head, then we have a balanced bridge construction. What is the meaning of balanced bridge construction? Slab by segment, we lift it and put it there. This segmental construction. Say 200 ton here, 200 ton here. Mostly length 3 meter. Like 3 meter here, then 3 meter, then 3 meter, then 3 meter. The most important part is the middle one. Middle part is done
cast in situ, others may be precast. If you see it is called stitch segment. This work is a stitch segment. This technical name of this formwork is a suspended formwork. So we use suspended formwork. We do the construction of stitch segment because its distance or shape we don't know. It is not matching our regular precast mold. So we go for a in situ diaphragm wall also. Like that, there are two types of diaphragm wall. For the retaining earth, one between the two girder. So disregarding this, now you can see the bridges constructed 100 years ago. They are still working today. Two examples are not simple bridges. This was the bridge, swing bridge in Kidarpore, Kerala. Kidarpore, latest we have a Gabban bridge also on a same principle. Then we are having a aqueduct in Rishikesh. In Rishikesh, this was also 100 years. It is still working. So we can see this picture also. Now there is a latest code also on IRC SP 136. One is for maintenance, one is for extra dose bridge. This is Pannalur, Kerala. Earlier we were doing testing of the bridge by the elephant equal 20 or 30%. This is in Kerala bridge. So anywhere, suppose I am doing any mistake, giving some wrong information, kindly interrupt me in between. The most beautiful bridge in Meghalaya is what is the need for good quality control. This is Mulchand Hospital. One is bridge you have seen here, suspension bridge. This is the suspension bridge. Here cables are vertical. Cables are vertical here. Suspension. This is the suspension. And Lakshman Jhula is a suspension bridge. Cables are vertical. Two columns. They are connected at the end. Earlier we were using hilly. Now we have put some pile inside and anchoring with it when the width has become the 5 meter now. First, only suspension bridges for low traffic, cable stay bridges for heavy traffic. And in between two, conventional bridge and cable stay bridge, there is an extra dose bridge, hybrid bridge, 50% conventional cable stay. In the case of cable stay bridge, there are about 23 or more than 20. Here, तो ये सर एक्स्ट्रा डोज है आपके सामने है सर. इसमें मूर्छेद है मेट्रो, 4 केबल है. तो 200 टन का एक केबल, जैसे लक्ष्मण जैसे है ना श्रवण कुमार, एक 200 टन का, ये एक 200 टन, फिर दूसरा 3 मीटर. तो यहाँ 60 मीटर स्पैन है. अगर आपको स्पैन 60 से 180 चाहिए तब आपको एक्स्ट्रा डोज, यानी आपने दे दी कन्वेंशनल ब्रिज के अंदर है ना एक्स्ट्रा डोज. ठीक है. और अगर पूरा केबल से है पैन 100, 400, 600 मीटर तक आप लोग, इवन आज की डेट में 2 किलोमीटर तक का भी स्पैन है. इंडिया मेघालय में मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज आजकल ये देखिए, फुल्ली प्रीकास्ट ब्रिज, आजकल मॉडर्न ब्रिज काफी जगह पे इंडिया के अंदर भी स्टार्ट, सिंगल पीस इंटीग्रल ब्रिज के अलावा. आप यदि हिस्ट्री देखेंगे सर, जब हमने मेट्रो स्टार्ट किया था तो पियर हेड कम से कम 1.5 मीटर का, आपका रोहिणी का पिक्चर है सर. उसके बाद फिर राजा गार्डन अगर आप आएंगे तो आपको 200 300 mm हेड हो गया. अगर आज आप दिल्ली आगरा में जाएंगे तो खाली ये दो ही नहीं, आजकल क्योंकि फाइनेट एलिड और ये आगे नए नए सॉफ्टवेयर, तो जहां जहां बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है वहां पर, तो 3 जगह से वैल्यू इंजीनियरिंग की है इन्होंने. देखो, इन्होंने स्लोप में कट किया, दोनों साइड स्लोप में. तो ये देखिए सर, आज की डेट में क्या है, तो ये आजकल हम लोग वैल्यू इंजीनियरिंग है, तो वैल्यू इंजीनियरिंग देखा जाए तो कब से स्टार्ट है. ये राजा गार्डन हो गया, नीचे दिल्ली आगरा हो गया, है ना सर. ये देखिए, मतलब वर्टिक वॉल से भी कट किया और प्री स्ट्रेस भी कर दिया. तो प्री, अगर आपका बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है तो टेक्निक को अगर आप यूज करेंगे तो प्री स्ट्रेस करो. ठीक है. जहां जहां बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है वहां पे लगाओ. जैसे आपको किसी स्टील ब्रिज की टेस्टिंग भी करनी है तो कहां पे ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, जहां सेंट्रल मिड पॉइंट है पर स्ट्रेस ज्यादा होती है. कॉर्नर पे जहां शेयर होता है वहां पे, जैसे अपोजिट पेमेंट में लोग क्या करते हैं, कॉर्नर पर कर देते हैं. तो जहां आपको स्ट्रेस ज्यादा लगती है वहां केयरफुल रहो और आप एक्स्ट्रा भी कोई प्रोविजन कर सकते हो. आपके सामने दिखा दिया सर. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन अपना मेन. इसके लिए जो मेन कोड है सर, ISP 54 कोड है सर. ये आपके सामने पिक्चर पे दिखाई दे रहा होगा सर. IR 18 का है. इसमें ये कहता है ब्रिज में और रोड इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है. ब्रिज के को डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है, यानी उसके लिए आपको टोपोग्राफी सर्वे करना है, सब सोल्यूशन करना है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी करना है. एनवायरमेंट इंपैक्ट
असेसमेंट के 3 नए कोड अभी छपे हैं, उसका आपको ध्यान रखेंगे पूरा। IRCSP 108 एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, IRC 104 एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और IRCSP 93 कि हम लोग NHAI वाले कॉन्ट्रैक्टर को क्लियरेंस कैसे देंगे, एनवायरमेंट क्लियरेंस। तो तीनों कोड आप रेफर कीजिए, ठीक है। तो ये डिटेल, तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ सर, फाउंडेशन से फिर टॉप तक कोशिश करूंगा जाने की। फाइनल लोकेशन करना, सर्वे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, इसमें क्या लिखा, एज फार एज पॉसिबल some major bridges only modern survey equipment shall be used, that is total station। आज आगे और आएगा, टोटल स्टेशन सर्वे के लिए यूज करना है। दूसरा और देखिए कहां पर करना है, आपका 60 मीटर स्पैन से कम है। So first we are going to show you the subsoil investigation as per MORTH 2400। Next please, next। हेलो, हाँ तो एकदम आगे आ गए, चलो। Now if you see in the presentation, if we find SPT, with the help of SPT you can find all different parameters also, like UCS, and if you know the N value, what is unconfined compressive strength, the phi value also, what is shear angle, all these things we can find. Next please, next please। You can see these are the further the different values screen में आनी सर, ये इसकी वजह से देखिए। रिगार्डिंग सबसॉइल इन्वेस्टिगेशन, I have already told you how to prepare the report. This figure shows as per IS 1892 also, same table is in IRCSP 54 also. How to prepare subsoil investigation report for the work. This we have shown you in the screen. Next please. Next please. Now, if you see for the detailed investigation, we need topography, we need subsoil investigation, we need environmental impact assessment also. ठीक है, next please, next। Hello. Now, for where you have to take the borehole, that also given. Span of the bridge is 60 meter. Then every pier we need one borehole test. What is borehole test? I will cover that also. In the case of rock, if it is a good quality rock, then we should have 600 mm inside it. If it is a poor rock, then 1.5 meter inside the rock our structure should go. Also we will show you in the next slide. We have to follow fully the IRC 78 for subsoil investigation for bridges. Next please. Next please. Am I audible? Hello. Yes sir, audible. देखिए सर, here if you see can slide the equipment you have to use, we have to use digital global positioning system, not with this advanced version of this, with RTK, real time kinematics, like we our date, time, place also come. Nowadays when you are taking DGPS, it must be included with RKT also, it is written. So these are the latest equipment we should go. LIDAR, GPR, drone, all these data to be stored. If you see on the top, road age RDB record, all data, anybody who is getting in NHAI, he has to put all the data in RDB. All data we are carrying from here as per this slide. Next please. This is the appendix 2 of IRC 78, sir. Appendix 2 of IRC 78. Next please. Next slide show you the equipment also. You can see these are the equipment. Differential global position with RTK, that also we have shown you. And now if you come to just please hold on. Regarding geophysical investigation, as per IS 1892, there are 4 tests.
First test is geophysical investigation. Earlier we were having first test only pit test. Now that is outdated now. From onward today, our section 5.1 this code says you have to go for geophysical investigation. This I will cover in detail. After that, trial pit, then borehole test. These are the tests. Next slide, please. Next slide will show you the type of the physical test. Next slide, please. Just please hold on. These are the tests. Electrical resistivity test. Just sir, can you come to back? Electrical resistivity, seismography. So these are tests. What these tests show? This will show you in the present slide. If you see here, if you know electrical resistivity in ohms, if it is coming to, it means sea water is there. If electrical resistivity 40, clay is there. If electrical resistivity is 250, it means broken water, lake water is there. If it is a sand, then 2000. If it is a murram, 5000. So with this, we can find the bottom. In the case of borehole, there is a problem. If you see the next slide, please. Next slide. This is the picture again. Second test. If you the as per IRC 137, as per IRC 37, 123 2017, with the help of physical investigation, what thing you can get as per IRC code: depth of the bedrock, type of the rock, thickness of the rock, groundwater table, water table, any buried structure, any historical volume and density, electrical resistivity, porosity. As per IRC 123, 2007, the first test where even you cannot reach, where borehole test is not possible. We have to go for physical investigation, geophysical investigation. This I have shown you that. Next, please. Next, please. Hello. Just this is a copy of the code. This is the picture you will get. Up to 40 meter deep, you can find out all the composition of the rock. Whether there is a rock, there is a silt, there is a water, the green color, red color, all these things notations are given in this. Kindly refer IRC 123 2070. Along with, if you need more detail, you can refer IS code also. IS copy is given here also. And this copy is here. IS 16. What is the name for this? 1681. So please refer the copy of the code is also shown. You will find this type of structure also. कितनी distance पर पानी है, कितनी distance पर lake है, कितनी distance पर पूरा आप उससे find कर सकते हैं. ठीक है सर? तो IRC 123 और दूसरा next तो और IS कोड, ये दोनों से आप लोग फिजिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं मोस्ट मॉडर्न मेथड से, जहां पर कोर कटिंग पॉसिबल, जहां बोरहोल टेस्ट पॉसिबल नहीं है. कई बार क्या करें, मोर्थ में ये भी लिखा हुआ है कि आपको ये भी करना है और वो भी करना है कंफर्मेटरी के लिए. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. जस्ट छोड़ो. नाउ सपोज आपका रोक आ गया, कौन कौन से टेस्ट करने हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे सर, इसमें अगर आपके तो ऊपर आपको आईएस कोड दिखाई देंगे. एज पर एमओआरटी है, किस कोड की हेल्प लेनी है जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? आईएस 1498, आईएस 1888, आईएस 1892, 2131 बोरहोल का है, 1892 जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का है, 1888 शैलो फाउंडेशन प्लेन लोड का है, 1498 सॉइल प्रॉपर्टीज टेस्ट करने के लिए, 2131 जो है एसपीटी कैसे निकालते हैं, और 2132 जो सैंपल कैसे निकालना है, 4434 आरक्यूडी कैसे निकालना है. तो ये सब कोड आपके सामने है. अगर आप नीचे देखेंगे कितनी डेप्थ पे कोर लेना है, अगर आ गई है कितनी डेप्थ तक जाना है, कितनी स्पेसिंग लेनी है. अगर अप्रोच है अबटमेंट के 50 मीटर 120 मीटर बिहाइंड तक आपको बोरहोल टेस्ट करना है. अब आरक्यूडी
क्या होता है, आरक्यू 1 मीटर कट करते हैं रॉक से, अगर 1 मीटर कोर साउंड निकल आया बिना ब्रेकिंग के, तो उसको हम बोलते हैं आरक्यूडी 100%। आरक्यूडी रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, यानी रॉक की क्वालिटी कैसे, अगर रॉक की क्वालिटी 25 से कम आ गई तो वो रॉक वेरी वीक कहलाती है। कौन सी रॉक है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे। आइए, इसको आप पॉइंट लोड टेस्ट से भी कर सकते हैं। कोई भी फ्रीगेट जैसे अगर आप लेंगे उस पर पॉइंट लोड टेस्ट करेंगे, उससे भी आप उसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। देखिए ये सारे कोड जो मैं जहां कोड में मोर्थ बुक में टाइटल लिख दिया सर। नेक्स्ट प्लीज। अब आरक्यूडी क्या होती है, देखो क्लियर लिखा हुआ है। आरक्यूडी में 1 मीटर कोर कट करते हैं, जो पीसेस 10 सेंटीमीटर से लंबे होंगे उनकी लेंथ लेनी है। जो ब्रोकन कोर कट किया, ब्रोकन भी होगा टूटा भी, जितने कोर करेंगे जो 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं 100 mm से, उनकी टोटल लेंथ डिवाइड बाई टोटल इनटू 100 इज कॉल्ड आरक्यूडी। ये आरक्यूडी का कोड आपके सामने है, रेफरेंस नंबर में, और आपको मेथड देंगे, दिखाएंगे कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, ये आपके सामने कोड है। जो कोड 5 सेंटीमीटर का, उस काउंट नहीं करना। जो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है, उन टोटल लेंथ उनकी कितनी आ गई सर, 85 डिवाइड बाई टोटल लेंथ इनटू 100, तो आरक्यूडी कितना आ गया, 50। समझ, ये मोर्थ में भी दिया है, मोर्थ का सेक्शन भी है, नेक्स्ट आपको दिखाया। वो जो टेबल थी मोर्थ की थी, अगर आप, ये मोर्थ की टेबल थी 2-4, देखिए ये, और पीछे यही दिखा दो। अब अगर आप कोर किसी वजह से रॉक में नहीं कट कर सकते, तो ये 2 सामने दिखाए हुए हैं, जस्ट नोट करो। अगर आप कोर नहीं कट कर सकते, अगर आरक्यूडी पॉसिबल नहीं, उस केस में 2 मेथड है। एक मेथड क्या है सर, आपके सामने दिया हुआ, आपके सामने कि उसमें से आप ज्वाइंट कितने हैं, अगर आपने ज्वाइंट चेक कर लिए, जैसे 1 क्यूबिक मीटर में 4.5 ज्वाइंट से कम है, तो जो आरक्यूडी आया वही का वही लेना, फिर है ना, करेक्शन। और अगर जो ज्वाइंट है वो 4.5 से कम है, उसके बाद उसके 4.5 से ज्यादा, फिर आपको ये लेना ऊपर वाली इक्वेशन। ठीक है, द कोर क्वालिटी क्लासिफाइड, ये ऑलरेडी आपको दिखा दिया। ये आईएस कोड में भी वही लिखा हुआ है, मोर्थ कोड में। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, अब ये आईआरसी 78 में क्या लिखा हुआ है कि किसको आप रोक बोल, किसको एक्सेलेंट रोक बोलेंगे, अगर उसकी कंप्रेसिस्टेंट पॉइंट लोड टेस्ट से या आर्क निकालते हैं, अगर 200 से ज्यादा आएगी एक्सेलेंट रोक, यानी उसकी कैपेसिटी कम से कम 50 टन से ज्यादा, 50 टन पर स्क्वायर मीटर, एन वैल्यू उसकी 50 या 60। अगर आपका जो यूसीएस है, अगर आपकी वेरी पुअर रोक है, वेरी पुअर रोक, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है जो एसपीटी के हिसाब से लेस 0.2 यूसीएस होगी। प्लीज, ये सेम इसमें भी सर वही लिखा हुआ है आईआर, इसमें अगली ये इसमें ये आईआरसी 78 2018 में भी क्लियर लिखा है, आपको आईआरसी 192 फॉलो कर। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, अब फाउंडेशन के बारे में थोड़ा आएंगे। अगर डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन विड्थ ऑफ द फाउंडेशन से कम होती है, उसको शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। अगर डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ब्रेथ से ज्यादा होती है, उसको डीप फाउंडेशन बोलते हैं। तो 2 स्लाइड दोनों पर हम आपको दिखाएंगे व्हाट इज फाउंडेशन, वेयर इट इज यूज्ड, व्हाट आर द आईएस कोड। देयर आर 2 लेटेस्ट डेवलप्ड आईआरसी कोड 2002 में अभी छपे हैं। हाउ टू डिजाइन दी शैलो फाउंडेशन, आईएस 120 2022 का है सर। दोनों में से 2 स्लाइड लिए हैं। और आईएस 1904 शैलो फाउंडेशन की स्पेसिफिकेशन क्या है, सेटलमेंट कितना अलाउड है, ये पूरा आपको इन दोनों कोड से मिल जाए। नेक्स्ट प्लीज। शैलो फाउंडेशन कहां देते हैं, डीप फाउंडेशन कहां देते हैं, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा।
इधर ये देखिए सर, जस्ट होल्ड ऑन। शैलो फाउंडेशन के लिए जहां पर इन दोनों का उल्टा है, डीप फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन में डिफरेंस क्या है, जहां बेरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट फ्लड लेवल लो है, नीचे जमीन के बहुत नीचे है, और डी वाटरिंग रिक्वायर्ड नहीं है, लोड कम है, तब आपको शैलो फाउंडेशन यूज करना है। से कलवर्ट, फिर रिपीट कर रहा हूं, शैलो फाउंडेशन जहां पर जो डेप्थ है ब्रेथ से कम है, 3 मीटर तक डेप्थ है, 4 मीटर तक डेप्थ है, उसको हम शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। शैलो फाउंडेशन कॉस्ट इफेक्टिव है, शैलो फाउंडेशन का प्रोसीजर सिंपल है, मटेरियल खाली कंक्रीट लगता है, लेबर कम लगती है। अगर आप किसी तरह से ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक करेंगे, उसकी बेरिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे, तो यू कैन डू ए गुड वैल्यू इंजीनियरिंग आल्सो। डीप फाउंडेशन क्या होती है, 4 डीप फाउंडेशन होती है, जहां कैपेसिटी बहुत लो है, जैसे कलकत्ता हो गया है ना, जहां बीरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, 2 टन 4 टन 5 टन पर स्क्वायर से कम है, एन वैल्यू 5 से कम है, वहां पर आपको डीप फाउंडेशन करना है। ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ऊपर है, ऊपर लो है, नीचे हाई है, यानी जमीन से ऊपर पानी आ रहा है, आपका डी वाटरिंग कर ही नहीं सकते, लोड बहुत हाई है, उस केस में आपको डीप फाउंडेशन करना है। क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट हो तो पूछते हो। एक शैलो फाउंडेशन, एक डी। विनय जी आवाज आ रही है क्या? विनय जी, विनय जी। यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर हो? थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और देखिए सर, राफ्ट फाउंडेशन मोड क्या कहती है? आईआरसीएसपी 3 तरह की फाउंडेशन है सर। कलवर्ट के लिए अलग है, ब्रिज के लिए अलग है, कलवर्ट के लिए अलग है, पाइल के लिए अलग है। तीनों की फाउंडेशन के बारे में एक स्लाइड में आपको, ये कलवर्ट की फाउंडेशन के बारे में। अगर आपको कलवर्ट की फाउंडेशन बनानी है आईआरसीआरसी, यानी अगर आपका ब्रिज की लेंथ कलवर्ट 6 मीटर से कम है, उसको हम कलवर्ट का मीनिंग क्या होता है? जहां पर कैचमेंट एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर होगा, अगर आप टोपी से देखते हैं तो 1.25 स्क्वायर किलोमीटर होगा, वहां पर आपको कलवर्ट बनाना ही। मोस्टली नेशनल हाईवे में हर किलोमीटर में मिनिमम 1 कलवर्ट तो नहीं है। आज 2 पाइप कलवर्ट भी कर रहे हैं। अभी मैंने ये देखा था बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे, वहां 2-3 पाइप कलवर्ट है, क्योंकि हम लोग आज का डिप्रेस मीडियन यूज कर रहे हैं। तो डिप्रेस मीडियन का पानी निकालने के लिए NP4 पाइप 1.2 मीटर डाया, मिनिमम कुशन 600 mm, ये आपको फॉलो करना है। तो राफ्ट फाउंडेशन के लिए आपको क्या लिखा है? जहां सैंड होगा, जहां आपका बीयरिंग कैपेसिटी 10 टन से कम है, वहां जहां 10 टन से आता है, वहां आपको राफ्ट फाउंडेशन करना है। जहां बीयरिंग कैपेसिटी 10 टन से कम है, वहां आपको बॉक्स कलवर्ट सकते हैं। और दूसरा, जो कट ऑफ वाल हो, जैसे आप कलवर्ट बनाते हैं तो 3 चीज होती है। एक होता है हेड वाल, हेलो, एक होता है हेड वाल, दूसरा क्या होता है, बैक जाएंगे सर, एक होता है हेड वाल, एक होता है कर्टेन वाल, एक होता है कट ऑफ वाल। कट ऑफ वाल जो होती है बॉक्स के नीचे होती है, जो फ्लोरिंग है, जो कट ऑफ वाला भी इनके नीचे होती है, उसकी लेंथ कम से कम 300 होनी चाहिए। देखो 30 सेंटीमीटर, 21.13। बॉक्स कलवर्ट में कट ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। कर्टेन वाल किसको बोलते हैं? जो कर्टेन का है, एक विंग वाल को दूसरी विंग वाल से जोड़ती है उसको। और हेड वॉल क्या होती है? जो डेक के ऊपर होगी, कलवर्ट की डेक के ऊपर होती है। तो मिनिमम ग्रेड M30 या M35 ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आपको देखा राफ्ट फाउंडेशन कैसे है कलवर्ट के लिए। नेक्स्ट प्लीज। कलवर्ट मींस ट्रांसफर वाटर। कलवर्ट का मतलब ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वन साइड टू द अनदर, कलवर्ट करना। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, अब जहां पर आप रो अगर आपको बनानी है फाउंडेशन, मान लो स्ट्रॉन्ग है, वीक, फिर उस केस में आपको जो जमीन भी उसकी जो विड्थ है डेक स्लैब विड्थ से कम होनी चाहिए। उसके अंदर होल्स भी होंगे अपलिफ्ट को रोकने के लिए। जैसे ही आप राफ्ट फाउंडेशन बनाएंगे, उसके अंदर कुछ बनाने पड़ेंगे। ड्राइंग आपकी आर्डली दी हुई है। कुशन कैसे बनाना है उसकी भी ड्राइंग IR ये 2000 आ गया। पहले पुराने वाले में क्या था, जो IRCSP 30 था, टॉप ऑफ द डेक स्लैब है 15,000 लिखा होता
डिस्चार्ज, अब उसको काट के 9 मिनिमम कर दी, 900 से अगर ऊपर होगा इट विल नॉट कम अंडर माइनर ब्रिज। कलवर्ट होता है 6 मीटर, माइनर ब्रिज होती है 6 से 60 मीटर लेंथ की, उसमें एक कलवर्ट 2 कलवर्ट होगा, और 60 मीटर से ज्यादा होगा उसको बोलते हैं मेजर ब्रिज। 6 मीटर वाले को कलवर्ट को ब्रिज नहीं बोल सकते, 6 से 60 मीटर वाले को माइनर ब्रिज, 6 से 30 वाले को ब्रिज, 6 से 30 वाले को स्मॉल ब्रिज, 6 से 60 वाले को माइनर ब्रिज। ये सारे IRCSP 13 रेफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हेलो, IRCSP 13 क्या कहता है, अगर मार्शी लैंड है, पारादीप उड़ीसा है, आपको कलवर्ट बनाना है या ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए क्या है, कलवर्ट के लिए वो ये कहता है 600 mm करीब आपको स्टोन पिचिंग करनी है, या बोल्डर रखना है, या सैंड का कट ऑफ लेयर डालनी है, के बाद आप कलवर्ट या कुछ भी बनाएंगे। दूसरा, अगर आपको सेटलमेंट वगैरह चेक है, कोड ऑफ कितनी कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए IS कोड आपके सामने लिखा हुआ है, उसको रेफर। जहां से बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है उसको या तो इंप्रूव करो, इंप्रूव करने के लिए स्टोन पिचिंग करना पड़ेगा, और अगर ब्रिज बनानी है तो ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक, अमेंडमेंट ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, अब बॉक्स सेल के लिए क्या लिखा हुआ है, जहां बियरिंग कैपेसिटी, खालिड पोर्शन को देखो सर, जो मेरी रेड लाइन है, खाली एक एक दो दो पॉइंट आप हर स्लाइड से सिलेक्ट कर सकते हो। से नीचे वाली जो रेड लाइन क्या लिखी हुई है, अगर बियरिंग कैपेसिटी 10 टन पर स्क्वायर मीटर से कम है, यानी एन वैल्यू, इसको बोलते हैं एन वैल्यू, इसी को SBC बोलते हैं, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन। अगर 10 टन से कम है तो बॉक्स कलवर्ट, अगर 10 टन से ज्यादा है तो स्लैब कलवर्ट, यानी स्लैब कलवर्ट 3 डायमेंशनल है, बॉक्स कलवर्ट 4, यानी बॉक्स कलवर्टिंग वाटर थ्रू RCC बॉक्स, यू आर कलवर्टिंग वाटर, ठीक है। अगर कैचमेंट एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर से कम है तब आपको बॉक्स कलवर्ट, अगर इससे ज्यादा है फिर आपको माइनर ब्रिज या स्मॉल ब्रिज बनानी पड़ेगी एज पर IRCSP 13। इसमें एक्वा वो होता है, पत्थर वगैरह आ जाएगा तो टॉप की हाइट प्लीज। एफ्लक्स, अगर एफ्लक्स आता है तो उसको भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। चल रहे सर? यस सर। सर आगे थोड़ी स्लो चल रहा है आपका लैपटॉप या क्या? ये देखिए, रोक लीजिए, देखिए अब ब्रिज के लिए, इससे पहली वाली अगर आप जाएंगे तो वो कलवर्ट के लिए है सर। रॉक में कैसे फाउंडेशन बनानी है, बैक वाली स्लाइड। चलो पहले इसी, बस रोक लीजिए सर। ये देखिए क्या लिखा है, अगर आपकी रॉक की बियरिंग कैपेसिटी 10 मेगापास्कल से कम है तब आपको 1.5 मीटर एमएन है राफ फाउंडेशन का, शैलो फाउंडेशन का, ओपटर्म फाउंडेशन का। अगर आपकी बहुत अच्छी रॉक है, मिनिमम 600 mm 0.6 मीटर हार्ड रॉक के अंदर आपको ब्रिज को बनाना। शैलो फाउंडेशन IRCSP 13 कलवर्ट की बात हो रही है, कलवर्ट में जो बाउंड्री लिमिट है 10 मेगापास्कल है, और अगर आपको ब्रिज बनाएंगे, नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट स्लाइड में, ये 78 हाईवे के लिए बोल सकते हैं, मेजर ब्रिजेस के लिए इसको आप कलवर्ट्स और माइनर रखते हैं, यानी नॉट लेस देन 2 मीटर, मिनिमम 2 मीटर तो रॉक के अंदर अमेंडमेंट करना। हेलो, मेरा तो आ रहा है सर नेटवर्क पूरा। हेलो विनय जी, हेलो विनय जी, यस सर, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज मेरा कंटिन्यू तो आ सर। रहा है पूरा, नेट तो दिखा रहा है, मेरा तो
आपकी तरफ से कुछ लगता नहीं, मेरा तो फुल दिखा रहा है सर दोनों। ठीक है सर, देखिए अब ये इसमें 12.5 मेगा लिखा हुआ, अगर 12.5 मेगा पास्कल से कम है तब 1.5, अगर 12 मेगा पास्कल से रो की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो 0.6 मस्ट बी मिनिमम अबेंडमेंट। अगर उसमें के अंदर एम्बेड करना है ओपन फाउंडेशन को, रो को काटने का 0.6 मीटर, और वीक सोइल है तो 1.5 मीटर आपको रो को काटना पड़ेगा अगर आपको ओपन फाउंडेशन में किसी ब्रिज को बनाना है तो। अगर बेयरिंग कैपेसिटी 10-20 टन है फिर हमको पाइल डी फाउंडेशन बिल्कुल नहीं करनी, शैलो फाउंडेशन, ये ओपन फाउंडेशन एक ही करना। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। लगता है स्लो है नेटवर्क या लैपटॉप स्लो चल रहा है। ये देखिए सर, अब क्या ब्रिज के लिए ध्यान से देखना, जहां आपके आगे आ गया IRC 78 क्या कहता है, कैसे आपको सब सोइल इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके लिए 4 मेथड है सब सोइल इन्वेस्टिगेशन के लिए। पहला है बोरोल बाई परकशन मेथड, कटिंग करके, यानी तो कटिंग नहीं हुई, सोइल ऑयल में सिंपली बोरोल बोलते हैं, ब्रिज के केस में बोरोल बाई परकशन बोल, ठीक है। या हाइड्रोलिक रोटरी, बोरोल में जो डाया लेंगे 400 mm लेंगे, सोइल के केस में डाया 100 mm लेते हैं। और क्या चीज हम DTH ओडेक्स ड्रिलिंग यूज करते हैं। DTHS क्या बोल, यहां से ऊपर लिखा हुआ है डाउन द होल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी होती है, और ओडेक्स का मतलब होता है सेंट्रिक ओवरबर्डनिंग ड्रिलिंग सिस्टम से हम लोग इसमें करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जैसे होल करेंगे केसिंग है वो अंदर ही रह जाएगी, तो ब्रिज के केस में आपको केसिंग को अंदर ही रखना है। अगर आप पूछेंगे, ठीक है ना सर, तो बोरोल शुड बी सप्लीमेंटेड विद जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो ब्रिज के में, रोड के केस में नहीं करना। अगर आपको ब्रिज बनानी है, बोरोल टेस्ट भी करना है, तो फिजिकल टेस्ट सारे IRC 123 के हिसाब से करने हैं, और दोनों को कंबाइन कंक्लूड करना है। यू हैव टू हेल्प द डिजाइनर। अगर डिजाइनर सब सोइल इन्वेस्टिगेशन सफिक्स है तब आपको जियो फिजिकल करने की जरूरत नहीं है। जियो फिजिकल करने के बाद यू हैव कॉन्टैक्ट द डिजाइनर ऑफ द, ही विल टेल यू वेदर ही नीड समथिंग मोर और नॉट, ठीक है। अब कई आजकल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, इतनी बढ़िया वो कोर कटिंग ले आएंगे कि जो कच्चा पत्थर वो भी साबुत निकल आएगा, तो भी आपकी RQD तो 100 हो गई, रियली में वो 10 भी नहीं है। तो उस चीज आपको जियो फिजिकल टेस्ट भी अगर आप करेंगे, क्योंकि ब्रिज की लाइफ 100 ईयर है, हम रिस्क नहीं ले, रोड के लिए रिस्क चलो कोई कुछ ह्यूमन का लाइफ का नुकसान नहीं होगा, ब्रिज के केस में काफी नुकसान हो सकता है। मिनिमम इसकी कम से कम 500-600 करोड़ है, और इसकी कम से कम 4-5 करोड़ है पर किलोमीटर है, तो लॉट ऑफ डिफरेंस है। इस दूसरा फिजिकल टेस्ट के साथ आप कोन पेनिट्रेशन टेस्ट भी करेंगे, 65 mm डाया, जहां जहां बोल्डर आता है, शियर टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर शियर कहीं पर भी हो गया तो ब्रिज किसी भी दिन गिर सकता है। शियर फेल्योर कहीं पर भी परमिटेड नहीं है, क्रैक कहीं पे, क्योंकि डायगोनल क्रैक का मतलब होता है लोड जो है किसी भी स्ट्रक्चर पे 45 डिग्री एंगल पर आता है, डायरेक्ट स्ट्रेस ही फेल हो रहा है, इधर उधर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्लीज। ये IRC 78 पार्ट 1 2024 का ड्राफ्ट है, पुराने में भी दिया हुआ है। IRC 78 पार्ट 2 का ड्राफ्ट फाइनल छपेगा तो आप उसे चेक कर सकते हैं प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। देखिए सर, अब अगर आपने सर्वे करना है रोक के एरिया में, तो जहां गुड रोक है वहां पर आप 3 मीटर तक कर सकते हैं, जहां मीडियम रोक है 6 मीटर तक सर्वे जो आपका जियो फिजिकल सिस्टम है। अगर आपका वीक सोइल है तो 10 मीटर तक नीचे जाना है सर। IRC 78 क्लास 8.6 पेज 4, टर्मिनेशन डेप्थ ऑफ द बोरोल कहां तक करना है, ये सर्वे के लिए है सर, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज।
आगे सर एक मिनट। अब IRC 78 और क्या कहता है, शैलो फाउंडेशन है, फिर बोरहोल नहीं करना, फिर आपको प्लेन लो टेस्ट करना है। IS 1 बेसिक पर्पज हमको बीयरिंग कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, IS 1 ट्रिप यूज करना है अगर शैलो फाउंडेशन है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हेलो, नेक्स्ट प्लीज। देखिए सर, फाउंडेशन I-78 के हिसाब से जहां आइसोलेटेड फुटिंग है, जहां पर आपको, तो इस केस में क्या करना है आपको, देखिए मिनिमम 300 mm फाउंडेशन OGL के नीचे होना चाहिए मिनिमम। अगर आप ओपन फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन कर रहे हैं, उसको मिनिमम कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन समझ लो, मिनिमम 300 का होगा। डी फाउंडेशन में फ्रिक्शन 20-40 मीटर, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है सर। और नेक्स्ट प्लीज। बाकी डिजाइन का पार्ट है, उसको इतना आप रेड लाइन को पढ़ सकते हैं, जहां पर भी रेड लाइन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने रेड लाइन से उसको किया हुआ सर। देखिए, ये कोड है, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। पूरे फाउंडेशन का स्पेसिफिकेशन आपको इस कोड में मिल जाएगा। जब आप फाउंडेशन का सर्वे कर रहे हैं, किस किस चीज का ध्यान रखना है, कैसन, डायफ्राम वॉल, वेल फाउंडेशन, इन सब का स्पेसिफिकेशन आपको इसके अंदर होगा। अगर आप और आगे जाएंगे, नेक्स्ट प्लीज, तो आपको, नेक्स्ट प्लीज, कई, नेक्स्ट प्लीज। ये सेटलमेंट कितना अलाउड है, ओपन फाउंडेशन का, शैलो फाउंडेशन कितना, डेप्थ का कितना अलाउड है, वो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए सर, अब इसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखिए सर। इसमें अब IRC 75 है। अगर आपका, अब अमेंडमेंट की बात करते हैं, अप्रोच के नीचे की, क्या फेल्यूर क्यों होता है, मेन रीजन IRC 75 पेज 70-71 में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर एंडी सोयल है तब सेटलमेंट देखने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट रेड लाइन देखेंगे। अगर आपका तब सेटलमेंट चांसेस हैं। जो अगर आपका नॉन प्लास्टिक मटेरियल है, विद वाटर से कंपेक्ट हो जाएगा, जैसे फिल्टर मीडिया होता है, ठीक है ना सर। अगर क्लेई सोयल है, इतना परिमेंट है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देगा। वो मिनिमम मैक्सिमम 300 mm है। 300 mm से ज्यादा एमेंकमेंट पूरी लाइफ में सेटल नहीं करना चाहिए। पर ईयर 20 से 25 mm, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, पर ईयर 20 से 25 mm तक सेटलमेंट पर है। अगर आप मेजर ब्रिज बना रहे हैं कोई भी, रिजिड पेमेंट है, तो रिजिड पेमेंट और मेजर ब्रिज के अंदर, या स्क्यू ब्रिज है, पर्टिकुलरली स्क्यू ब्रिज, उसके लिए आपको टर्मिनल बहुत जरूरी है। क्योंकि रिजिड पेमेंट में जो पैनल है 4.5 बाई 3.5 का है, मान लो मेरे, तो एंड वाला स्लैब कैसे बनाएंगे, अप्रोच स्लैब को भी टेढ़ी नहीं कर सकते। 3 मीटर लेंथ, 300 mm डेप्थ होना चाहिए, डबली रीइंफोर्स होगा, 12 mm डाया, 150 mm सेंटर टू सेंटर। अगर आपका रिजिड पेमेंट और ब्रिज है, उसके लिए आपको एक टर्मिनल स्लैब और एंकर भी, जो बॉटम पे दिखाई दे रहा है, ये एंकर बीम है, जिससे अगर मेरा रिजिड पेमेंट एक्सपेंड या मेरा ब्रिज डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे, लेफ्ट साइड में फिर अप्रोच आएगी, टर्मिनल स्लैब आएगी, टर्मिनल स्लैब के नीचे आपका बीम आएगी। ये फिर यहाँ पर डाउल बार कोई लगाता है, कोई नहीं लगाता। डाउल पीछे DLC नहीं करना, प्लेन कंक्रीट करना है, ठीक है सर। तो ये एंकर बीम कैसे कर दिया, तो शुरू में चला था, ये आपको दिखा दिया, ठीक है ना सर। अगर कब करना है, नेक्स्ट स्लाइड देखो। आप फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में भी, अगर आप फ्लेक्सिबल पेमेंट या रिजिड से जोड़ रहे हैं या डेक से जोड़ रहे हैं, पहले बार मैं रायपुर विशाखापट्टनम वाले में था, तो जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाते हैं,
और उसके ऊपर एक ट्रांसफर क्रैक आया हुआ है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाते हैं प्लीज। अगर आपका रिजिड का से कॉन्टैक्ट हो रहा है, उसको कैसे ट्रांजिशन स्लैब बनानी है, ये देखिए, ये दोनों C15 में दी हुई है। अगर आपको फ्लेक्सिबल से रिजिड में बनानी है या कंक्रीट स्लैब बनानी है, मीटर का ट्रांजिशन स्लैब बनाना है। इसमें जो कंक्रीट है वो सिंगल पीस होगा। अगर आपको ध्यान दें, यहां से लेकर इसके अंदर 3 या 4 स्टेप बनानी है, ये RCC की स्लैब होगी। स्टेप में आप DBA में भी राइट साइड में फ्लेक्सिबल पेमेंट है, लेफ्ट साइड में सीमेंट कंक्रीट स्लैब भी बोल सकते हैं, ठीक है ना सर। हमने यमुना एक्सप्रेस में जहां वाइडनिंग की अप्रोच की स्टेप दी है यमुना एक्सप्रेस में, तो एक DGM की लेयर आएगी, फिर WMM की लेयर आएगी, फिर वो ट्रांजिशन स्लैब 4 मीटर की बनानी पड़ेगी अगर आपको ब्रिज के अंदर ट्रांजिशन स्लैब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। स्लो चल रहा है। ये देखिए, एंकर बीम कब बनानी है, अगर आपका रिजिड पेमेंट बट करता है तब। अगर बट नहीं करता उस केस में आपको कन्वर्ट ये टर्मिनल स्लैब नहीं बनानी। पार्ट ये पूरे पूरा क्लियर लिखा हुआ है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे और क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, टॉप पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड, एंकर बीम और टर्मिनल स्लैब। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, अब ये कौन कौन से टाइप ऑफ सीमेंट है ये आपको दिखाया। नेक्स्ट प्लीज। ये टाइप ऑफ, पहले क्या होता था सर, अलग अलग कोड होते थे। अब जो सीमेंट यूज करना है आपको, अगर आप फ्लाई है, सिलिका फ्यूम कहीं यूज कर रहे हो, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस का, आपको खाली 53 ग्रेड ही यूज करना है, ठीक है सर। और जहाँ कोस्टल एरिया है वहां आपके इकाई देने हैं, वो करना। तो सर हम इसको अभी यहीं पे होल्ड करते हैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे।